Good afternoon, students, and welcome in your computer class. So, let's begin the same class that we have left on yesterday or in last day. So, in our last classes, we were looking of chapter 2, language and software story. And in that chapter, we have already discussed development of language. What we have already discussed in our last class, development of language, and we have seen 3 languages that were developed. First was machine language, then enhancement has been done and assembly language comes, and then the high languages came in fashion. Now, after that, we have already seen system software. So we have discussed development of languages and we have discussed system software. So for today, we are going to start a new topic, that is application software. As we have discussed that there are software, so majorly 2 types of software are present, system software and application software. System software or operating software we have already discussed. Now we are going to discuss application software. And in application software there are 2 types. Application software are also 2 types. One is general purpose software and other one is custom made software. Clear? The application software are also can be divided into 2 parts. First, general purpose software and second, custom made software. So what is the difference between general purpose and custom made software? Okay, so first we will go for the general purpose software. General purpose software or general purpose application software provide the environment required to develop custom made software. Okay, general purpose software or application are what? They provide the environment required to develop custom made software. Like by using LibreOffice based software, we can design or develop library management system for school, right? So these kind of software can be developed. In easy language, what you can say, general purpose means ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें एक एनवायरनमेंट प्रेजेंट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं जिनका यूज करके हम कोई और प्रोग्राम, कोई और सॉफ्टवेयर या कोई और फाइल डिजाइन कर सकते हैं. अंडरस्टूड? तो दैट आर कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिजाइन करने में या डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं. जैसे अगर हम LibreOffice बेस का एग्जांपल लें, तो बेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है डेटाबेस फाइल को बनाने के लिए. अब उस डेटाबेस फाइल सिस्टम को यूज करके हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं अपने स्कूल के लिए. क्लियर? तो इसी तरह से और भी ऑफिस पर्पस हैं जिनमें डेटाबेस का यूज करके आप कोई और सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो. तो दीज आर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आर नोन एज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. नॉट ओनली दीज बट द अदर एप्लीकेशंस आर आल्सो देयर. लाइक इन सिंपल लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड इजीली आप कौन से सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कि अगर हम MS वर्ड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है. आप वर्ड का यूज करके आप ड्राइंग फाइल्स बना सकते हो, टेक्स्ट फाइल बना सकते हो, आप उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हो. वर्ड में हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? हम ड्राइंग्स भी कर सकते हैं, बट इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर द टेक्स्ट बेस्ड डिजाइनिंग, राइट? सो जो वर्ड है वो टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है. फिर अगर हम एक्सेल की बात करें, वो भी एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेबुलर वर्क कर सकते हैं, राइट?
जैसे अगर हम उसको अगर ऑनलाइन करें तो हम उसको अटेंडेंस के लिए यूज कर सकते हैं. सपोज लाइक वर्क नाउअडेज एवरीबडी इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो उसमें अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं. तो इस तरह के बहुत सारे जो एप्लीकेशन है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेस, दीज ऑल आर द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. बाय यूजिंग दोज सॉफ्टवेयर वी कैन वर्क accordingly, means as per the user's choice. So those softwares are known as general purpose application software, right? Now after that another one is this custom made software. These custom made software can be designed or developed by using some particular languages, right? Like custom made software are the program developed as per individual's need. इंडिविजुअल मीन्स सपोज कि आई एम हैविंग अ शॉप. इंडिविजुअल का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अपने लिए एक सॉफ्टवेयर सेपरेटली डिजाइन करवा सकता है. जैसे कि मान लीजिए आई एम हैविंग अ शॉप. अब मुझे शॉप में बिलिंग के लिए और अपना डेटा और डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए. तो वो सॉफ्टवेयर आई कैन डिजाइन, और मैं किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से अपने लिए वो एक सॉफ्टवेयर अपनी रिक्वायरमेंट उसको बताकर और प्रोग्राम डेवलप करवा सकते हैं. ठीक है, अब ना मुझे वर्ड की जरूरत पड़ेगी ना एक्सेल की. जो स्पेशल मैंने अपने लिए प्रोग्राम डिजाइन करवाया है हम उसका यूज कर सकते हैं. गॉट इट? तो दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड कस्टम मेड सॉफ्टवेयर, जहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी रिक्वायरमेंट के और अपनी नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सकता है या प्रोग्राम डेवलप करवा सकता है. जैसे कि अकाउंटिंग, अभी आपको बोला शॉप का एग्जांपल दिया, वहां अगर अकाउंटिंग की जरूरत है तो. देन फी कलेक्शन, लाइक इन आवर स्कूल वी आर हैविंग, तो फी कलेक्शन के लिए क्या सर एक्सेल या पावर पॉइंट यूज करते हैं? नहीं, दे आर हैविंग देयर ओन सॉफ्टवेयर, फॉर दैट दे आर यूजिंग फी कलेक्शन, राइट? सो दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड custom made application software, and these software can be developed by using any language or any other package. ठीक है, लैंग्वेज का यूज करके भी ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है और पैकेज का यूज करके भी. पैकेज का यूज करके जैसे आपको बताया लाइबर ऑफिस बेस जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करके हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट डेवलप किया, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट कस्टम मेड सॉफ्टवेयर है. अभी दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया? एक बार वापस से देखिए जनरल पर्पस वाला. लेट्स सी, जनरल पर्पस व्हाट वी हैव सीन, डेवलप्ड बाय यूजिंग लाइबर ऑफिस बेस. तो लाइबर ऑफिस बेस आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर को यूज करके हमने डेवलप किया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये आपका कस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है, कस्टम नीड सॉफ्टवेयर है. नाउ इज इट क्लियर टू ऑल? अब ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सी, आफ्टर looking for that system software and application software, there is one more software that is called utility software. ये जो utility software है, they are like the background workers, those never come in front of the curtain. ये हमेशा कर्टन के पीछे से काम करते हैं. जैसे अभी हम अगर काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप लेटर बना रहे हैं, तो आप वर्ड में काम कर रहे हैं, वर्ड फ्रंट में आकर काम कर रहा है, आप उस पर वर्क कर रहे हो. ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो यू नो कि आप विंडोज में काम कर रहे हो. बट यूटिलिटी प्रोग्राम आर दोज विच डू देयर जॉब एट द बैक साइड. यू नेवर नो, बट ये अपने रूटीन वर्क करते हैं, बट वो रूटीन वर्क आर वेरी नेसेसरी टू continue our work or to work smoothly on the system. So that's why utility programs are very important. Utility programs perform the routine. Got it? Routine means ये routine work है उनका, what they are doing, but it is very necessary job in a computer system. पर ये है बहुत essential और बहुत necessary. अगर इनका work proper नहीं होगा then we will not be able to work smoothly, right? तो अब इनमें ये कौन से ऐसे जॉब है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं? लाइक बैकअप ऑफ डेटा, डेटा का डे बाय डे बैकअप रखना. देन
टेस्टिंग द डिस्क इंटीग्रिटी, जो डिस्क अवेलेबिलिटी है उसको टेस्ट करना. उसके बाद रिकवरिंग द एक्सीडेंटली डिलीटेड डेटा. सपोज सम टाइम आप we are working and all of a sudden that power has gone, तो मे बी द करप्शन कुड बी देयर, कोई फाइल करप्ट हो जाए, मे बी सम डेटा कुड बी डिलीट. तो उस डेटा को जो एक्सीडेंटली डिलीट हो गया है या करप्ट हो गया है, तो टू रिकवर दैट डेटा, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम. सो दीज आर द यूटिलिटी प्रोग्राम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच वर्क at background but still they are very important. So we have seen languages. In language we have seen 3 language: machine, assembly and high level. Then in software also we have seen 3: system software, application software and utility software. Utility software को हम system में include कर सकते हैं. Okay, now let's have a quick recap with this diagram. ठीक है, diagram showing types of computer software. Software chart. Computer software कितने? 3: system, application, utility. इनमें से जो application software है ये again 2 टाइप में डिवाइड हो गया: जनरल पर्पस एंड कस्टम मेड. जनरल पर्पस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लाइक दैट. एंड कस्टम मेड लाइक इनमें से किसी सॉफ्टवेयर का या लैंग्वेज का यूज करके हमने बना लिया सम अदर डेवलप्ड सॉफ्टवेयर लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट, अकाउंट, फी कलेक्शन etc. Done. So these are the software. Now a recap point is there. So let's have the recap. The machine language is elementary language that consists 2 digit 0 and 1. Then in assembly language, binary codes were replaced by mnemonic, means instead of 0 and 1, mnemonics came. In high level language, they are the programming language which can be used like the English terms, right? So we can write instruction in English like statement. Then system software work as internal level. System software internally काम करता है, right? Tells the computer how to manage. Then operating system, which is responsible for providing interface between user and the computer. जो system software है और जो operating software है ये क्या help करते हैं? It's work as a bridge between user and computer system. And application software, they make the computer more useful for the user, right? So these are all the points that we have covered and discussed in chapter 2. Now we will complete the book exercise and question answer in our next class. Got it? So let's conclude this topic. Stay happy. That's all from my side. Have a nice day. Bye bye.